When I passed 10th standard from Balmond, one of my friend, he told me that if you want to do something in life, you have to start playing cricket. And you are a decent in cricket, it looks like. You're a good fielder, you can bat well. Achekar sir का नाम तभी सब नंबर 1 पे था. Of course, sir was always a great coach. मैंने फिर वो ज्वाइन किया. फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट वेरी गुड. प्रैक्टिस शुरू की. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस मॉर्निंग एंड इवनिंग. आई वाज वेरी वेरी फिट. लास्ट बॉल पे स्ट्राइक रोटेट करना, स्ट्राइक लेना है, उस चक्कर में मैंने गैप क्रिएट की और बोल्ड हो गया. सो दैट इज हाउ आई लॉस्ट दैट चांस कि डेब्यू में 5 विकेट्स एंड 100 आज तक किसी भी लेवल में नहीं हुआ. तो 11 रन से गए थे. आई वेंट टू इंग्लैंड. तो फील्डिंग कर रहा था मैं. आई वाज अ बेस्ट फील्डर. आई नेवर फील्डेड एट फाइन लेग थर्ड मैन दोज डेज. मैं पॉइंट पे खड़ा रहा. तो कोई ऑस्ट्रेलियन प्रो था, उसने कट मारा, मैंने डाइव मार के बॉल अड़ाया वो स्ट्रिप पे और बॉल के ऊपर से मैं रोल हो गया. बोन मेरा अंदर पिंच हो गया. So this is how I missed 2 years, precious 2 years of my career. I also heard that you have coached teams in MPL as well as Legends League as well. T20 फॉर्मेट जो है ना, उसके लिए I was badly looking forward. जैसे ही लाया उसमें से हमें बढ़िया टैलेंट मिला था. दुबे जिनको MPL से मदद मिलके आगे चल के वो इंडिया खेले या जो भी अच्छा लेवल खेले, IPL में अच्छा परफॉर्म. तो इस हिसाब से MPL का महत्व बहुत ज़्यादा है. This video is brought to you by Avisa Sports, where passion meets performance. Their trusted balls and brand fuels the game at premier events and leagues across India, Dubai, Qatar and US. Avisa Sports extends their heartfelt wishes to all the cricketers across the globe. Thank you so much, Amit ji, यहाँ पे आने के लिए. First of all, I would like to ask you, how are you right now? I'm very good, thank you. How does it feel over here in the studio? It has a really good vibes. Except for the AC. AC will be cooled down. Yes, you have to face this. So since I'm a cricketer first, adjusting to the conditions. Exactly. So that is what we have learned in our life, that whatever the conditions are, you have to go and play. That just shows the true cricketing spirit that is there in you. Yes. I would like to know your earliest memories. आपका cricket से introduction कैसे हुआ and what made you fall in love with the sport? अगर मेरे क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे तो बेसिकली आई वाज नॉट एट ऑल अ क्रिकेटर. आई एम फ्रॉम बालमोहन विद्या मंदिर विच प्रोड्यूस संदीप पाटिल सर, राजू कुलकर्णी एंड लॉट मेनी फर्स्ट क्लास प्लेयर्स दोज डेज. and we had a very good and decent cricketing journey of school, which you call it. Unfortunately, I was not at all interested in cricket. I was into athletics. I was a part of Samartha Vyam Mandir, which is located at Shivaji Park. So I was a part of that athletics group. So I was athlete, out and out athlete. I used to participate in long distance running, 100-meter sprinting, then wrestling, and all those sports where I actually get to have feel about the mud and be on the ground all the time. But to go to that Samartha Vyam Mandir every day, every evening, I used to pass through Shivaji Park. So that is where I saw Sachin Tendulkar in his young days. When that time probably he was 12, 13 years old. And then Praveen Amre, then Vinod Kambli, all were practicing hard at Achekar sir's nets. So this is how I got attracted towards cricket. So when I passed 10th standard from Balmond, one fine day, one of my friends from tennis ball cricket, he told me that, see, if you want to do something in life, you have to start playing cricket. Because what used to happen, after watching Sachin, Praveen, Vinod playing in the nets, I used to go to Samartha Vyam Mandir and I used to wait for that bell to get ring. So during that time I used to play tennis ball cricket with the kids over there. Yeah, correct. So there I made a lot of friends, and the ones that bell rings, I used to run and join that athletics group. So that was my passion then. But one of that friend, he told me after I passed 10th standard, so he said, see, in athletics there is no future.
if and you are a decent in cricket, it looks like you are a good fielder, you can bat well. I never bowled in tennis ball cricket. अच्छा. So he said you should try your luck. हाँ. So for that you have to take admission with decent coach where you can learn Professional actual cricket, season ball cricket. Correct. So आचेकर सर का नाम तभी सब नंबर 1 पे था. Of course सर was always a great coach. Yeah. तो मैंने फिर वो ज्वाइन किया. फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट वेरी गुड, आई वुड से इट वाज वेरी बैड देन. तो मुझे 10th के बाद जॉब करना पड़ा. Okay. तो मैंने मम्मी को कैसे वैसे कन्विंस किया. आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 6 years old, सो मम्मी वाज द ओनली ब्रेड अर्नर इन द फैमिली. तो शी आस्क्ड मी कि नहीं क्रिकेट विकेट वो खेल छोड़ दो. तभी क्रिकेट वाज नॉट दैट प्रोफेशनल. करेक्ट. सो उन्होंने मम्मी ने बोला कि आप क्रिकेट वगैरह मत खेलो, जॉब के लिए ट्राई करो. तो मैं बोला कि एक 2 साल मुझे देखने दो. अगर नहीं तो मैं इमीडिएटली जॉब ले. मैं आई हैव अ यंग एल्डर ब्रदर हु ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग विथ सम कंपनी. करेक्ट. तो मुझे भी वही करना पड़ता था अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलता तो फिर कैसे वैसे आचेगा सर के पास एडमिशन लिया. मेरा दोस्त ही मुझे लेके गया और सर प्रैक्टिस शुरू की. तो 10वीं पास हुए थे, कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं था. तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस मॉर्निंग एंड इवनिंग. आई वाज वेरी वेरी फिट. सो फिटनेस जो मुझे बाद में पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट है, करेक्ट. वो मुझे अर्ली डेज में ही पता चला. और मेरा जो एथलेटिक्स बैकग्राउंड था वो मुझे उस टाइम यूज़ हुआ कि जब मैंने पिकअप किया. तो मॉर्निंग में 4 घंटा प्रैक्टिस कर पाता था और इवनिंग में 3-4 घंटा फिर से प्रैक्टिस करता था. घर पे सिर्फ खाना खाने जाता था, फिर से प्रैक्टिस करता था. करेक्ट. तो ऐसे करते करते 5-6 महीने निकल गए. और फिर सर ने बोला कि ऐसे ही क्रिकेट मत खेलो, कुछ आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी कॉलेज में. टू गो अहेड. तो आप शील्ड क्रिकेट खेलना पड़ेगा. तो मैं बोला ठीक है चलो लेते. तो सर सिंस आई नेवर प्लेड स्कूल क्रिकेट तो मुझे एडमिशन कोई दे नहीं रहा था. तो सर ने एक लेटर लिख के दिया मुझे कि अमित दानी इज़ अ गुड ऑलराउंडर. आई डोंट नो हाउ एंड व्हाट ही सॉ इन मी. तो उन्होंने एक जनरल लेटर लिख के दिया कि अमित दानी इज़ अ गुड फील्डर, गुड बैट्समैन, ही इज़ अ ग्रेट ऑलराउंडर, यू शुड गिव हिम एडमिशन. एंड वो एक लेटर लेके मैं हर कॉलेज में जाता था टू गेट मी एडमिशन इन दैट. करेक्ट. तो काफ़ी कॉलेज ने और ऑलरेडी लेट हो चुका था, सारी टीमें बन चुकी थी, तो मुझे एडमिशन नहीं मिला. तो फिर 1-2 महीने बाद ऑलमोस्ट इन जुलाई और अगस्त मैं सर के पास आया फिर से और सर को बोला कि सर एडमिशन तो कहीं नहीं हो रहा है मेरा क्योंकि मैं स्कूल क्रिकेट रिप्रेजेंट नहीं किया. तो बोले ठीक है फिर एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास है कि गवर्नमेंट फॉर्म भर दो. तभी एक गवर्नमेंट फॉर्म होता था जिनको एडमिशन कहीं नहीं मिलता. वो गवर्नमेंट फिर आपको हेल्प करती है एडमिशन दिलाने. तो उसमें आपके चॉइसेस देने पड़ते हैं. वहाँ मिलता नहीं है. लेकिन तो फाइनली मुझे एडमिशन मिला अम्बेडकर कॉलेज में विच इज़ लोकेटेड एट वडाला. तो वहाँ पे एडमिशन मिला. वहाँ काफ़ी दोस्त मेरे हुए जो क्रिकेट खेलते थे, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे. तो उस साल हमने देखा कि वो कॉलेज बैन हुआ था 2 साल के लिए. जब मैंने एडमिशन लिया और इंक्वायरी शुरू की कि हमारी टीम कैसी है क्या है, तो वो पता चला कि 2 साल के लिए बैन हुआ है. कोई ओवर एज प्लेयर खेला था प्रीवियस ईयर, तो उन्होंने MCA ने एंड यूनिवर्सिटी ने 2 साल के लिए बैन किया था. तो मैं फिर सर के पास गया, सर ऐसा ऐसा हुआ है, प्रॉब्लम है. तो सर बोले कि आप एक काम करो, एक अपॉलॉजी लेटर MCA और यूनिवर्सिटी को दे दो आपके कॉलेज की तरफ से. तो फिर ठीक है, मैंने अपने स्पोर्ट्स मैनेजर को बोला कॉलेज के कि आप ऐसे लेटर मैं लिख के देता हूँ, आप साइन करके प्लीज़ दे दो. और वो सारा करस्पॉन्डेंस मैंने करवाया और फॉर्चुनेटली हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई और हमें एंट्री मिली. तो उस साल मैंने ही टीम बनाई. गोपाल कोहली सर हमारे कोच थे, परशा कोहली उनके यंगर ब्रदर वो हमारे कोच थे. तो हम माटुंगा जिमखाना पे प्रैक्टिस करते थे निविन पे. तो वहाँ हमें काफ़ी कुछ सीखने मिला. सबसे ज़्यादा सीख जो मिली वो ऑफकोर्स आचेगा सर के पास कि दिन रात इतने बड़े प्लेयर्स को हम देखते थे. तो उनके साथ सर क्या कोचिंग उनको टिप्स देते हैं
कैसे उनके साथ बर्ताव होता है, इंटरेक्शन सर का उनके साथ किया, तो आई यूज्ड टू जस्ट स्टैंड बिहाइंड एवरीवन, क्योंकि सर का एक स्टाइल था जो यूनिक था हमारे लिए और सबके लिए, कि किसी भी मैच के बाद सर सबको ग्राउंड पे खड़ा करते थे और पूछते थे कि आप कैसे आउट हुए, आपने कैसे बॉलिंग की, और रिव्यू होता था, और उसमें सर उनको टिप्स देते थे कि आपने ये करना था। अगर मैं कवर्स के हाथ में मार के आउट हुआ हूँ तो सर बोलते थे तुम्हारा टॉप एंड लूज था, या हेड उठा लिया, बट व्हाट अबाउट अप्रिसिएशन? हाँ, विद अप्रिसिएशन। अच्छा, ही वाज, आई हैव हर्ड कि ही यूज्ड टू नॉट गिव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन इफ ही फाउंड, हाँ, मतलब ऐसा ओवरवेलमिंगली कुछ नहीं करते थे, हाँ, लेकिन जितना जरूरी था। लेकिन अगर आपने आउट हुए तो सर आपको चिल्ला देते, हर प्लेयर को वो डांटते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने सर करके, तो जो भी सर के पास खेले हुए प्लेयर्स है, इतने सारे अभी मुंबई में जितने हैं, उस सब का कोचिंग मंत्रा और फंडा और स्टाइल, आप जो भी बोलो, एग्जैक्ट सेम हम चाहते हैं कि वो क्रिकेटर जो क्रिकेट सर ने हमको सिखाया वही हम बाकी बच्चों, टेक्निक वगैरह वो ऑफकोर्स NCA में जाके लेवल्स करने के बाद वो टेक्निकल उसका डेफिनेटली हेल्प होता है टू कन्विंस वेल, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने आसेगा सर के मुंह से पहले सुन चुके थे। ऑल्सो द खड़ूसपन, हाँ, खड़ूसपना, वो तो क्लब क्रिकेट, वो जर्नी, वो ट्रैवलिंग, वो कॉम्पिटिटिवनेस, उससे तो वो खड़ूसपना आता ही है, क्योंकि मुंबई इज़ ब्लेस्ड विद द पॉपुलेशन। तो दैट इज़ द रीज़न आई बिलीव कि मुंबई में वो खड़ूसपना जो बोलते हैं, क्योंकि आपको जो मौका मिला है वो आप हाथ से जाने नहीं देते, और दैट इज़ व्हाट द खड़ूसपना इज़। करेक्ट। व्हाट एडवाइस ही गेव यू which you still sort of recollect and you also sort of implement in your एडवाइस सर ने ऑफ कोर्स क्रिकेटिंग स्किल के बारे में तो हमेशा देते ही थे। उसके साथ ऐसा था कि सर का कामत मेमोरियल क्रिकेट क्लब जो सर देखते थे टीम, वो D डिवीज़न या C डिवीज़न में खेलते थे, कांगाली। तो उसमें मैं एक साल उसके लिए खेलता था, मैं रजिस्टर था, तो खेल कोई और ही रहा था, मुझे एक मैच भी खेलने का मौका नहीं मिला। तो मैं सर के पास आके बोलता, सर आज भी मुझे नहीं खिलाया, कल लास्ट मैच में भी नहीं खिला, ये भी नहीं, वो नहीं। तो सर बोले कि दैट इज़ इन कैप्टन्स हैंड, यू हैव टू रिस्पेक्ट, कन्विंस कैप्टन कि क्यों तुझे ले ओवर अदर प्लेयर। तो मैं बोला कि ऐसे कैप्टन तो मुझे जानता ही नहीं है। तो बोला कि फिर यही है कि आपको आपके चांस के लिए वेट करना पड़ेगा, और या फिर वो कभी प्रैक्टिस के लिए आए तभी आप अपना टैलेंट दिखा दो उसको नेट्स में। तो नेट्स में जो सीरियसनेस होता है खेलने का, वो हम वहाँ से सीखे कि तो फिर फाइनली मुझे एक मौका मिला एक मैच में, तो जिसमें मैंने 30-35 रन्स कुछ किए एक ही मैच में। लास्ट मैच था कांगाली का, तो उसमें एक 35 रन्स, लेकिन आउट हुआ। तो सर को पता चला कि एटलीस्ट आई कैन प्ले डिसेंट लेवल। तो उसके बाद वाले सीज़न में सर ने मुझे बताया कि आप अगर हो सकता है तो किसी दूसरे क्लब के लिए ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे मेरे सीनियर प्लेयर्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बाहर ना बैठे, यू शुड बी प्लेइंग। बाहर बैठ के इतना नहीं सीखोगे जितना आप खेल के मिस्टेक्स करके सीखोगे। तो फिर सर ने मेरे लिए बात की, जो तभी के सेक्रेटरी थे MCA के बाल मादलकर, उनसे, उनका यंग मेंस क्रिकेट क्लब करके D डिवीज़न में क्लब था, तो उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे उनके क्लब से खेलने के लिए बुलाया। और एक वेरी इंटरेस्टिंग, तभी के लोगों की या तभी के कोचेस की दाद देनी पड़ेगी कि मैं 2 साल यंग मेंस क्रिकेट क्लब के लिए खेला। D डिवीज़न से हम B डिवीज़न, C डिवीज़न में आए। C डिवीज़न के चैम्पियनशिप के लिए जा रहे थे। लास्ट मैच में लास्ट विकेट, वो जो भी अगेंस्ट अपोनेंट्स थे, वो लास्ट विकेट सर्वाइव हो गया और हम चैम्पियन नहीं हो पाए। सो वी कुड नॉट गेट द एलिवेशन, प्रमोशन नहीं हुआ। करेक्ट। तो हम C में ही रह गए। तो हमारी वो टीम हेमू दलवी सर मैनेज कर रहे थे। हेमू दलवी सर इज़ अनदर, ही यूज्ड टू वर्क फॉर रेलवेज, तो अनदर ग्रेट कोच आई वुड से। तो उन्होंने भी काफ़ी अंडर 19, 16 टीम बॉम्बे के कोचिंग की हुई है। तो उन्होंने मुझे उस दिन, मुझे क्लियरली डे भी याद है कि मेरा हाथ पकड़, लास्ट मैच कांगाली का होने के बाद हमारा आज़ाद मैदान पे मैच था। आज़ाद मैदान से मेरा हाथ पकड़ के लेके गए और सुधीर नाइक सर के पास नेशनल क्रिकेट क्लब पे लेके गए।
और वो ए डिवीज़न का क्लब था। हाँ तो उनके पास लेके गए और उनको बोला कि ये प्लेयर आपके टीम में फिट होगा, वाह आप इसे रख लो। तो सर बोले, तो सुधीर नायक सर ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो ऑफकोर्स हेमू दलवी सर को जानते थे अच्छी तरह। करेक्ट। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके बाद जो टूर्नामेंट हुआ हाँ वहाँ से मैं जो खेला वो आज तक मैं कभी बाहर नहीं बैठा। तो ये तभी के प्लेयर्स की कि अपना प्लेयर आज की तारीख में अपना अच्छा प्लेयर कोई दूसरे को देते नहीं। हाँ वही। हाँ And मतलब because he growth के wanted लिए you तो to हाँ, succeed हाँ, and go ahead in exactly. the So that was the greatness of those people. yeah तो वहाँ से मैं क्रिकेटर बना, हाँ जो डी डिवीज़न से सी से ए डिवीज़न, और वहाँ से मेरी जर्नी क्रिकेटिंग this was the जर्नी। rise of Amit Dani the cricketer So जो भी मुझे क्रिकेट सीखना था, हाँ। एक्चुअल क्रिकेट जो ए डिवीज़न क्रिकेट, मुंबई क्रिकेट जो बोलते, वो मैंने नेशनल क्रिकेट क्लब से सीखा। यहाँ से आपने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना, मतलब इट्स अ बिग थिंग। सो हाउ वुड यू लाइक टू समराइज दैट एंटायर जर्नी फ्रॉम देयर टू फ्रॉम बीइंग एन ए डिवीजन क्रिकेटर से लेके सीधा रणजी ट्रॉफी में? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे मैंने बताया कि क्रिकेट के बारे में मैं इतना जानता नहीं था। आई वॉज नॉट एट ऑल अ क्रिकेटर अर्लियर। और ये जो मैं इंसिडेंट बोल रहा हूँ, दैट टाइम आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। हाँ मैंने 16 में शुरू किया एंड इन 2 years ऑल दिस हैपेंड। या तो अभी मैं नहीं 19 ईयर्स ओल्ड आई वॉज। तो उस साल क्या हुआ कि एक अंडर 23 मैं जब 19 खेल रहा था तभी एक बिचिप ट्रॉफी होती थी जो अंडर 23 होती थी। तो हमारे सारे सीनियर्स वो अंडर 23 खेल रहे, हम देखते थे मैचेस जाके। जब हमारे मैचेस नहीं हुए, प्रैक्टिस नहीं हुई, तो हम जाके देखते थे। वहाँ मरीन लाइन्स में पारसी जिमखाना, इस्लाम जिमखाना, वहाँ वो मैचेस होते थे। तो वी यूज्ड टू गो एंड वॉच दोज गेम्स। जब 19 हमारा ओवर हुआ, वो बिचिप ट्रॉफी बंद हो गई। तो हमने सोचा कि ये क्या हो गया भाई। हाँ। तो अभी हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? करेक्ट। तो कुछ रहा ही नहीं। तो मैं नेशनल के लिए उसी साल 19 व्हेन आई वाज 19 दैट टाइम ये सब हुआ। हेमू दलवी सर मुझे लेके गए और सुधीर नायक सर के हवाले कर दिया। दैट वाज इन 1992। और 92 से एक साल तब से मैं क्रिकेट मतलब नेशनल के लिए रेगुलर खेलता रहा। करेक्ट। ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस भी देता रहा। एक मैच था कांगाली का लास्ट मैच, जिसमें हमें टारगेट था 100 अगेंस्ट पीजे हिंदू जिमखाना कि 135 रन्स और 10 ओवर का ही मैच था। बाकी टाइम वाइज कांगाली का। तो सुनील मोरे जो हमारे कैप्टन थे तभी, और संदीप महाड़कर, उन्होंने बोला कि अमित दानी टेनिस का बैकग्राउंड है तेरे को, जाके कोशिश करेंगे, हाँ विल गो फॉर द मैच। और राजू सुतार एक बहुत अच्छा नाम था तभी रणजी ट्रॉफी सर्किट में, जो हार्ड हिटर है और ये सब। अतुल रानड़े था तभी, जो सीनियर है मेरे एज वाइज, 1-2 साल इधर उधर, लेकिन क्रिकेटिंग जर्नी में वो सीनियर है मेरे। तो बैटिंग ऑर्डर शफल हुआ। फिर राजू सुतार ओपन में गए, उन्होंने 25-30 किए। फिर अतुल रानड़े 1 डाउन गया, उसने को बहुत अच्छा बैटिंग किया। और फिर 2 या 3 विकेट गिरने के बाद सुनील मोरे बोला अमित तू जा। और वो मैच में मैंने कुछ ऐसे ही 13 बॉल में 53 नॉट आउट किए। और हम वो मैच 11 ओवर का मैच होने वाला था, वो हम लोग ने 9.4 ओवर्स में चेस कर लिया। एंड अगेंस्ट वेरी गुड अटैक। हिंदू जिमखाना का अटैक बहुत अच्छा अटैक था। तो रवि गडियार, वो विश्वास वालावलकर, नितिन सावंत और भी 1-2 प्लेयर थे। तो वो अटैक के सामने गया। तो वो इनिंग मेरी बहुत लोगों ने देखी। और फिर वहाँ से मेरा नाम रणजी के लिए, रणजी प्रोबेबल्स के लिए प्रमोट हुआ। करेक्ट। और वहाँ से मैं फिर प्रोबेबल्स में जाके तभी के जो लेजेंड्स, सारे बड़े बड़े नाम वो प्रोबेबल्स लिस्ट में थे। तो हम जब प्रैक्टिस करते थे तो व्हेन यू प्ले अगेंस्ट अ बेटर प्लेयर, देन यू कम टू नो योर लेवल, योर गेम। एंड आइदर यू बिकम बेटर और यू लूज द होप्स। करेक्ट। दो में से एक ही चीज़ हुई। तो मेरे साथ शायद अच्छा हुआ कि मैं बेटर और बेटर बनते गया। करेक्ट। तो उसके बाद 1995 में आई हिट द पर्पल पैच ऑफ क्रिकेट। उसमें नेशनल के लिए खेलते वक्त कांगा लीग में पहले मैच में मैंने 8 विकेट लिए अगेंस्ट इस्लाम जिमखाना बॉलिंग करते हुए।
नेक्स्ट मैच अगेंस्ट CCA एट CCA मैंने 9 विकेट लिए इनिंग में। सचिन तेंदुलकर खेल रहा था, अभिजीत काळे, अजीत आगरकर बच्चा था तभी, छोटा ही था, करेक्ट 17 years old में भी और 18, तो वो था, मतलब अच्छा नाम था। इंडिया अंडर-19 खेल चुका था अजीत आगरकर, रोहन गावस्कर, अमरजीत मारवा, हकीम खान और भी कुछ नाम है। तो वो मैच में मैंने 9 विकेट लिए, सिर्फ सचिन तेंदुलकर छोड़ के बाकी सारे 9 मुझे आउट किया। तो वो ये उस मैच में हुआ। नेक्स्ट मैच इमीडिएटली आफ्टर इस्लाम, ये मैच, उसके बाद हिंदू जिमखाना के सामने 7 विकेट, उसके बाद और एक किसी क्लब के साथ 5 विकेट। तो ऐसे ही 4 मैचेस में मेरे 35 विकेट हो गए, 30-35 विकेट्स हुए। तो मेरा फिर न्यूजीलैंड टूरिंग टीम थी, उनके अगेंस्ट मेरा डेब्यू हुआ एट वानखेड़े। सो आई वाज पिक्ड बिकॉज आई वाज हिटिंग, लाइक आई सेड कि आई वाज हिटिंग पर्पल बैट, फॉर्म देख के ही सिलेक्शन होता है, तो वैसे हुआ। तो आई डिडंट गेट अ चांस टू प्ले अगेंस्ट मार्टिन क्रो टीम, बट आई वाज अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड सेटअप। हाँ, so that was the first time I entered on the Wankhede Stadium. Wow. Against the New Zealand side, in the Mumbai dressing room. Correct. With Sachin, Sanjay Manjrekar, Vinod Kamli, Jatin Paranspe, Amol Muzumdar of course. वसीम जाफर का डेब्यू नहीं हुआ था तभी। एबी कुरविला, पारस मामरे, समीर दिगे और भी बहुत बड़े बड़े नाम। तो वो एटमॉस्फेयर, वो फील लेने में जो मज़ा आई थी तभी, वो आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स। तो ये देखा कि ये माहौल है। लेकिन एक मेरा एडवांटेज ये था, उसी साल मेरा डेब्यू हुआ रणजी ट्रॉफी का। एक एडवांटेज ये हुआ कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरे ऐसा होता है बहुत कि ये सब देखने के बाद मैं फील प्रेशर नर्वस फील करने लगते हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। उसके बाद वो न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद इन कपल ऑफ वीक्स टाइम रणजी सीजन स्टार्टेड। तो फर्स्ट मेरा मैच था, डेब्यू मैच गुजरात के अगेंस्ट वलसाड में। सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे। तो वो मैच में मैंने डेब्यू में 5 विकेट लिए। पहले हमारी बॉम्बे की बॉलिंग थी, उसमें मैंने 5 विकेट लिए। तो रिकॉर्ड ऐसा है कि 5 के 5 सचिन तेंदुलकर ने स्लिप में कैचेस पकड़े थे। तो वो हुआ। उसके बाद हमने गुजरात को कुछ 200 में ऑल आउट किया, 200-220 ऑल आउट किया, और हमारी बैटिंग थी। और हम लोग 180 फॉर 5 हुए थे। मैं बैटिंग को गया, विनोद कामली बैटिंग कर रहे थे, सचिन 35 पे आउट हुए। दैट इज द ओनली टाइम आई सॉ सचिन गेटिंग आउट अर्ली। दैट वाज ऑन 35। तो सचिन आउट हो चुके थे। तो विनोद और मेरी 150-200 रन की पार्टनरशिप, और मैंने 89 रन बनाए उस मैच में। तो वो और मैं ओवरनाइट नॉट आउट था। विनोद कामले आउट हुआ 100 करके, और मैं आई वाज बैटिंग विद टेल। तो उसमें वो मनीष पटेल, एबी कुरविला, ये लोग थे। तो मनीष पटेल आउट हो चुका था, एबी कुरविला बाकी था लास्ट। और मुझे सब लोग बोल रहे थे, अरे डेब्यू में 5 विकेट और 100 करोगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आई वाज ओके, ऐसा कुछ रिकॉर्ड ऐसा पता नहीं था। तो नेक्स्ट डे हम जब बैटिंग उतरे तो मुझे मैक्सिमम स्ट्राइक लेना था, क्योंकि अभी उतना अच्छा बैटिंग नहीं करता था। तो मैंने 1-2 चौके भी मार दिए। 81 नॉट आउट था मैं, वहाँ से 89 तक गया। और स्ट्राइक रोटेट करने के चक्कर में बैट और पैड में गैप हो गया। लास्ट बॉल पे स्ट्राइक रोटेट करना, स्ट्राइक लेना है, उस चक्कर में मैंने गैप क्रिएट की और बोल्ड हो गया। सो दैट इज हाउ आई लॉस्ट दैट चांस कि डेब्यू में 5 विकेट्स एंड 100 आज तक किसी भी लेवल में नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट फॉर द 11 रन हो गया। हाँ, जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड होता है। तो 11 रन से गया। तो एनीवेज, तो वो होने के बाद तो दैट वाज अ ड्रीम डेब्यू कि 5 विकेट्स ऑन डेब्यू और 89 रन्स। तो ऑलराउंडर करके छाप आ चुकी थी। करेक्ट। और नेक्स्ट मैच में सलील अंकोला शायद इंजर्ड था फर्स्ट मैच में, तो वो सेकंड मैच अगेंस्ट बड़ौदा कम बैक किया, इंजरी से रिकवर होके आया। तो आई हैड टू सिट आउट। तो दो आई वाज अ परफॉर्मर, लेकिन बॉम्बे, यही तो बॉम्बे टीम का चार्म है, स्टैंडर्ड्स आपको कौन रिप्लेस कर रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। वो इंडिया प्लेयर है, तो ऐसे बुरा भी मुझे कुछ नहीं लगा, आज भी नहीं लगते। फिर उसके बाद
और एक मैच हुआ उसमें 2-3 विकेट लिए। तो ऐसे मुंबई में इन एंड आउट ऐसे काफ़ी चलता गया। और तभी ऑलराउंडर ये कंसेप्ट इतना नहीं था। आप डेज क्रिकेट में आइदर बैटिंग करते हो या बॉलिंग करते हो। करेक्ट। तो अगर आप देखोगे लाइनअप तो उसमें सारे बैट्समैन, पहले 6 तक बैट्समैन है। विकेट कीपर वॉज द ओनली ऑलराउंडर समीर दिगे, जो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते थे और ऑफकोर्स कैप्टन भी थे, कीपर भी बहुत अच्छे थे। करेक्ट। और उसके बाद सॉर्ट ऑफ टेल जो उसमें अच्छी बैटिंग, पारस मामरे बहुत अच्छी बैटिंग करता था, तो वो 7-8 नंबर, बिकॉज़ वी नीड मोर, मतलब एट दैट टाइम आल्सो टेल। तो और एक साइराज था, साइराज का भी बैटिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा, बॉलिंग का तो बेस्ट है 750 विकेट्स है, लेकिन बैटिंग का भी रिकॉर्ड अच्छा है उसका। तो ऐसे ऑलराउंडर जो रिलायबल ऑलराउंडर नहीं, लेकिन डेफिनेटली टीम को लेके जा सकता है, ऐसे ऑलराउंडर्स। तो ऐसे चलते गए। फिर नेक्स्ट तो ये सीज़न ख़त्म हुआ हमारा, वी लॉस्ट इन क्वार्टर फाइनल्स। और फिर आई वेंट टू इंग्लैंड टू प्ले लीग क्रिकेट, क्योंकि यहाँ ऑफ सीज़न होता है। तो मुझे दिलीप वेंगसरकर सर ने बोला कि तुम उधर जाके खेलो, तुम्हारा अच्छा हुआ है, सीज़न गया है, तो यू शुड कंटिन्यू योर फॉर्म। तो ठीक है, मैं उधर गया और देयर आई सफर्ड अ बैक इंजरी। तो फील्डिंग कर रहा था पॉइंट पे, और वहाँ क्या होता है इंग्लैंड में कि हर ग्राउंड पे जहाँ लीग क्रिकेट होता है, कॉर्नर का स्ट्रिप कंक्रीट का होता है, पिच, जिसके ऊपर एस्ट्रो टर्फ डालते हैं, क्योंकि वहाँ वेदर होता है इतना खराब, तो प्रैक्टिस नहीं होगी, इसलिए वो लोग एस्ट्रो टर्फ, तभी मैंने देखा था, आई एम टॉकिंग अबाउट 96। तो वहाँ हम लोग एक किसी नॉटिंघमशायर में कहीं मैच खेल रहे थे, तो फील्डिंग कर रहा था मैं। आई वॉज अ बेस्ट फील्डर, आई नेवर फील्डेड एट फाइन लेग थर्ड मैन दोज डेज। कवर्स, पॉइंट, स्पेल डाल रहा हूँ तो भी मैं पॉइंट पे खड़ा रहता। तो अगर मैं पॉइंट या कवर्स में नहीं हूँ तो आई वॉज आउट ऑफ द गेम। ये मेरा थिंकिंग था। सो आई वांटेड टू बी इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी बॉल। सो मैं पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा था और आई वॉज इन द मिडल ऑफ माई स्पेल ऑल्सो। तो कोई ऑस्ट्रेलियन प्रो था, उसने कट मारा, मैंने डाइव मार के बॉल अड़ाया वो स्ट्रिप पे, और बॉल के ऊपर से मैं रोल हो गया। तो मेरा पूरा प्रेशर बोन मेरा अंदर पिंच हो गया। ओके। तो व्हेन आई गॉट अप आई कुड फील कि मेरा कुछ तो इंजरी हुआ है। तो फिर बॉलिंग नहीं हुई। फिर सिंस आई वाज एन ऑलराउंडर आई कंप्लीटेड दैट सीजन नेक्स्ट 2-3 months and then I came back to India, but I could not bowl. So this is how I missed 2 years, precious 2 years of my career due to that injury. What year was this? 97 and 98. अच्छा। So I got injured in 96. So 97 का सीज़न नहीं खेल पाया, 98 का नहीं खेल पाया। तो आप अगर इंजरी की वजह से बाहर जाते हो तो फिर कम बैक करना बॉम्बे जैसे टीम में हेल ऑफ अ टास्क। तो फिर उसी टाइम पे अजीत आगरकर ने डेब्यू किया और वहाँ से फिर उनका तो बड़ा ही प्लेयर है, अच्छा प्लेयर, तो वो आगे बढ़ गया। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा क्रिकेटिंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटिंग जर्नी तो वो थोड़ा स्टैंड स्टिल पे आ गया। लेकिन मैंने फिर रिकवर किया, बहुत फिटनेस किया, हार्डवर्क किया, ट्रीटमेंट लिया और फिर खेलते गया। फिर नेक्स्ट 2-3 years आई कंटिन्यूड विथ बॉम्बे। देन 2003 आई प्लेड फॉर गोवा। दे ऑफर्ड मी, क्योंकि मैं बॉम्बे टीम में बाहर बैठ रहा था। आई वॉज देयर एज अ वनडे स्पेशलिस्ट इन मुंबई टीम। करेक्ट। सब वनडे मैचेस में खेलता था, डेज मैचेस में मैं बाहर बैठा था। करेक्ट। तो और वही था तभी, क्योंकि बॉलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे। एबी कुरविला खेल रहा था, पारस मामरे खेल रहा था, संतोष सक्सेना आ चुका था, अजीत आगरकर था। अभी ये 4 तो मेरे कंटेम्प्रेरीज है। तो उनके सामने डेफिनेटली आई वॉज नॉट दैट गुड at that time. So you made this decision yourself, or was this like okay? The moment I got offer from Goa, I used to go to Goa and play that club cricket there during my free time. तो मैं शांत कभी घर पे बैठा ही नहीं हूँ। तो और तभी कोई नहीं बैठा था, मैं ही नहीं, कोई भी। हम लोग कहीं ना कहीं टूर पे जाते थे, रत्नागिरी, चिपळूण, तो उधर भी क्रिकेट के लिए ही जाते थे। हम घूमने के लिए, मुझे याद नहीं है इतने 10-15 साल में हमें घूमने के लिए कहीं गए। तो हम लोग जाते थे, खेलते थे। तो गोवा के लिए ऐसे ही मैं मैचेस खेलता था, वहाँ परफॉर्मेंस करता था, बीइंग एन ऑलराउंडर ऑलवेज करता था। तो उन्होंने वन फाइन डे मुझे फ़ोन करके बोला कि आप खेलोगे क्या? बोला हाँ, अगर आप खिलाओगे, मुझे कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का देते हो तो मैं खेलता हूँ। तो बोले ठीक है। तो उधर के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 साल के लिए। सो मी एंड
मंदार फड़के, हम दोनों ने साथ में गोवा गए और वहाँ से खेले फिर 3 साल। तो और संदीप दहाड़ ऑलरेडी उधर खेल रहा था। हाँ हाँ मुंबई से संदीप दहाड़, रोहित राणे, फैज़ल शेख, ये तीनों ऑलरेडी गोवा के लिए खेल रहे थे। तो मैं और मंदार हम लोग प्रोफेशनल्स करके ज्वाइन हुए उनको। तो वहाँ भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हम। मुझे जानना था बॉलिंग का कीड़ा आपको आया कैसे, बिकॉज यू सेड कि यू यूज्ड टू प्ले टेनिस क्रिकेट एंड देन जस्ट बैटिंग वाज योर प्राइम फोकस, बट हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज द बॉलिंग, योर बॉलिंग टैलेंट, एंड व्हेन डिड यू फील कि या आई कैन डू वेल? एक्चुअली आई एम अ एक्सीडेंटल बॉलर। एक्सीडेंटल बॉलर। हाँ। तो हुआ ये कि मैं जब अंबेडकर कॉलेज में एडमिशन ली थी तो मेरा एक फ्रेंड था नीलेश करके, नीलेश माइकर, तो वो फास्ट बॉलर था। तो एक दिन कॉलेज में हम बैठे थे, तो कुछ तो कॉलेज में झगड़ा हुआ या कुछ हुआ है तो कॉलेज बंद था। तो नीलेश ने मुझे बोला कि आज मफतलाल बॉलिंग स्कीम का सिलेक्शन है। तो मुझे पता नहीं, उसने पेपर में दिखाया मुझे कि ऐसे से, बोला लेकिन बॉलर का है ना, मेरा क्या उधर काम। तो उधर कॉलेज में तो ऐसे ही बंद है, तो चल टाइम पास करते हैं वहाँ। बोला ठीक है, उसको कंपनी देने के लिए मैं भी जाके गया। तो हमारा वो एरिया वाइज सेंटर, जैसे अभी भी होते एरिया वाइज, वैसे उनके 5 सेंटर्स थे वेस्टर्न लाइन के लिए, बैंड्रा टू बोरीवली खार जिमखाना, माहिम टू चर्चगेट सीसी है, सेंट्रल लाइन में वीटी टू माटुंगा समवेयर इन वीटी, फ्रॉम सायन टू थाना नहीं, सायन टू मुलुंड एट आरसीएफ, और थाना और कल्याण वगैरह रीजन का थाना में कहीं दादोजी कोंडेर पे, ऐसे 5 सेंटर्स थे उनके। तो हम पहुँचे खार जिमखाना पे, हमारे सेंटर पे। वहाँ पे देखा तो ऑलमोस्ट 1200 लड़के थे खार जिमखाना पे। 1200 पूरा वाइट दिख रहा था। सब वाइट्स में आए थे, पूरा वाइट। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि मुझे नहीं लगता इसमें मेरे को चांस आ गए, तू जा, मैं रुकता हूँ इधर। तो मैं आई वाज सिटिंग ऑन द कट्टा खार जिमखाना के, तभी वो फेंस नहीं था, ओपन कट्टा था। तो मैं बैठा हूँ, देख रहा हूँ सबको। तो वहाँ के कोचेस थे या सिलेक्टर हेमू दलवी सर। तो मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे वहाँ देखा होगा। अच्छा, समझा। हेमू दलवी सर थे और जयंती लाल केनिया सर और मकरंद वांगणकर, वो ही वॉज अ फादर ऑफ दैट स्कीम। तो उन्होंने वो भी वहाँ थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बच्चों का। तो वो सबके नाम ले रहे थे, राउंड्स चल रहे थे। कोचेस वो जो बलविंदर अपने ये हेमू दलवी सर और जयंतीलाल सर प्लेयर्स को देख रहे थे, सिलेक्ट रिजेक्ट व्हाटएवर उनका चल। मैं कट्टे पे बैठ के टाइम पास चल रहा था मेरा। तो मकरंद वांगणकर सर ने देखा कि मैं कट्टे पे बैठा हूँ। तो वो वहाँ से सबके नाम रजिस्टर, तो मेरे को पूछा तू क्या करता है। तो बोला मैं बैट्समैन हूँ। बॉलिंग डालता है कि नहीं, हाथ घुमाता है कि नहीं, मुझे पूछा। बोला हाँ थोड़ा बहुत करता हूँ। तो ठीक है आ जा। तो बोला सर बैठता हूँ ना। अरे आजा आजा, ज्वाइन हो जा इसमें। तो बोला ठीक है। मैं उतरा ग्राउंड पे, मैं गया। तो वहाँ ये था कि जो भी बच्चे आए थे उसमें से 30 बच्चों को लेने वाले थे फॉर 2 मंथ्स कैंप। ऐसा हर कैंप से 30 बच्चे करके सिलेक्ट करने वाले, उनको ट्रेन करने वाले थे। तो करते 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 मैं वो लास्ट 30 में आ गया। आई डोंट नो हाउ क्योंकि शायद मेरा एथलेटिक बैकग्राउंड उनको पसंद है, जो भागता अच्छा है। हम लोग बॉलर में क्वालिटी कोच, एज अ कोच आप वही देखते हो कि वो फिट है कि नहीं, उसका बेसिक एक्शन अच्छा है कि नहीं। करेक्ट। क्योंकि करेक्शन तो सभी में कर रहे हैं। जब कोचिंग के लिए आते हैं तो बच्चे के लिए बेसिक स्टांस, ग्रिप वही देखा जाता है। फर्स्ट डे पे तो वही देखते, तो वैसे शायद उनको कुछ पसंद आया होगा। तो मैं वो फाइनल 30 में आ गया। तो फिर सीरियस बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो 2 महीने का कैंप। तो ऐसे था कि 5 सेंटर में से 30 बच्चे सिलेक्ट करके उनको रेसिडेंशियल कैंप होने वाला था वानखेड़े पे। और फ्रैंक टाइसन, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, टाइफून, वो फर्स्ट टाइम कोचिंग के लिए इंडिया आने वाले थे। 1 महीने का रेसिडेंशियल कैंप फॉर बॉलर्स, तो स्पिनर, फास्ट बॉलर, कोई भी, लेकिन बॉलर्स। तो महाराष्ट्र के, सिर्फ मुंबई के नहीं, महाराष्ट्र ने भी अपने स्टेट के फास्ट बॉलर्स को वहाँ पे भेजा था। तो वो 30 में फॉर्चुनेटली मेरा नंबर आ गया। तो 2 महीने बाद जो सिलेक्ट हुआ, करेक्ट, तो उसमें आ गया। तो वहाँ से मैं
रियल फास्ट बॉलर, क्योंकि फास्ट बॉलिंग का जो स्किल है वो मुझे वो फिटनेस के साथ साथ जो भी फास्ट बॉलर को डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ता है वो मुझे मफतलाल बॉलिंग स्कीम में पता चला। तो दिस इज़ हाउ आई बिकेम बॉलर। तो बैटिंग ने बैक सीट ले ली और मैं बॉलर बन गया। कभी ऐसा लगा कि आई शुड जस्ट क्विट वन थिंग एंड जस्ट focus just on one thing, or you felt कि नहीं, let both be your strong point? नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि एक चीज़ छोड़नी चाहिए, क्योंकि बैटिंग तो मेरा था ही और मैं सिलेक्ट होता था बॉलिंग पे, तो आई वॉज एंजॉइंग बोथ प्लस दोनों। तो मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे दोनों स्किल अच्छी तरह करने को आते हैं या कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। तो उससे एक सीख मिली कि बॉल मिला तो बॉलिंग दिल से करो, बैटिंग आई तो रन्स करो, यही फंडा था। तो यही करना है, ऑलराउंडर का काम ही यही है। वहाँ से फिर कमिंग बैक टू गोवा, हाउ वाज योर डेब्यू लाइक एंड हाउ वुड यू लाइक टू समराइज योर एंटायर गोवा एक्सपीरियंस? गोवा देखो, अभी गोवा स्टेट एसोसिएशन जो है वो इतना, मुझे हम मुंबई से खेल के गोवा के लिए गए तो हमारे लिए तो कल्चरल शॉक जो बोलते वैसा था। कि मैं, मंदार फड़के, संदीप दहाड़, फैजल शेख और रोहित राणे, ये 5 प्लेयर छोड़ के छठा प्लेयर हमारे जहन में नहीं था कि जो टीम को आगे ले जा सके। बाकी सारे बच्चे थे। स्वप्निल आसनोडकर डेब्यू उसी साल किया। स्वप्निल आसनोडकर जो आगे चल के आरआर के लिए खेला और गोवा के लिए भी काफ़ी बड़ा बहुत कुछ खेला। तो वो बच्चा था एकदम, अंडर 19 प्लेयर था। एक रॉबिन डिसोजा करके था, वो भी ऑलराउंडर था लेकिन डिसेंट प्लेयर था। उसके अलावा तीसरा नाम नहीं आ रहा है। तो जो भी करना है हम 5 को ही करना है, कोर है। हाँ, वो कोर। तो 5 लोग, हम लोग डिस्कशन में भी हम लोग 5 लोग बैठ के करते थे। और जो स्वप्निल आसनोडकर हमारे साथ उठता बैठा था तो वो कुछ सीख पाए हमसे, तो हम वो कोशिश करते थे। तो हम प्लान हमारा यही होता था कि हम में से 5 में से किसी ने परफॉर्मेंस करना ही है, टीम को आगे लेके जाना ही है। तो ये हम लोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखा वहाँ पे, कि आप बाहर से गए हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है कि आपके जैसे और 10 प्लेयर है, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप के लिए लड़ते हो, वहाँ आपको टीम के लिए लड़ना है। तो हमारी डिफरेंट ये था। तो वी डिड इट रीजनेबली वेल, ऐसा मुझे लगता है। और गोवा एसोसिएशन जो है ना, वो इतना पैशनेट नहीं है कि जीतने के लिए। वो खुद ही अपने प्लेयर्स को लाइटली लेते हैं, इसीलिए शायद उनका ग्रोथ अब, लेकिन लास्ट कपल ऑफ इयर्स 10 साल में मैंने देखा है कि गोवा हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, क्योंकि उन्होंने अच्छे प्लेयर्स रिक्रूट करना शुरू किए हैं और अपने प्लेयर्स के लिए भी अच्छे एकेडमीज दिए है, फैसिलिटीज दिए है। सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू इम्प्रूव फ्रॉम हियर। तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स अभी आ रहे। तो तभी का तो गोवा का स्टार्टिंग टाइम था, शुरू का टाइम था, तो वो भी अपने आप को लाइटली ले लेते, लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था खेलने के लिए। जितना मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव नॉट टेकन दिस गेम लाइक टू सीरियसली, बिकॉज समटाइम्स देयर आर क्रिकेटर्स हु जस्ट टेक इट टू सीरियसली, सब कुछ दिल पे ले लेते हैं, एंड इफ दे हैव अ वेरी बैड नॉक, इफ दे हैव अ पुअर रन और द सेम थिंग विद द बॉल एज वेल, they sort of take it very seriously, but I don't see that with you. Like, is that the right thing to say कि you are sort of not completely or too attached to this sport when you were playing? नहीं, मैं जब खेलता था तभी मैं बहुत सीरियस लेता था, हाँ, लेकिन but you are also able to sort of detach from the sport better than. नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरी पहचान ही क्रिकेट है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी क्रिकेटर के अलावा कहीं और कुछ सोचा भी था। हाँ। तो आई डोंट नो, अभी मैं शायद मैच्योरिटी आई है इसलिए मैं इतना कैजुअली बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन तभी तो बहुत फाइट करता था, हर चीज़ के लिए फाइट होती थी, पैशनेटली उतरते थे, चैलेंजेस लेते थे। तो वो जो एक पैशन क्रिकेटर में चाहिए थी ऑफकोर्स मुझ में भी थी, और मेरे जैसे हज़ारों प्लेयर्स में थी। तो कॉम्पिटिटिवनेस मुझे लगता है कि हमारे टाइम पे ज़्यादा था। करेक्ट। अभी थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्शंस भी आ गए। हाँ, अभी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा आ गए। और डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन जल्दी देख लेते हैं बच्चे कि ये अगर मैं 2 साल खेल के देखता हूँ, अगर नहीं तो मैं ये कुछ अलग कर लूँगा। पेशेंस कम हो गए
ये मुझे ऐसा Like they don't feel होता back है। themselves to sort of कि continue। फाइट करना है, नहीं मुझे करना है, मुझे अगर मुझे नहीं सिलेक्ट किए तो मैं और अच्छा करके आऊँगा, ये स्पिरिट नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये शायद बॉम्बे में ही है कि बाहर भी है, मुझे पता नहीं, लेकिन वी आर लैकिंग इन द स्पिरिट राइट नाउ। Currently, obviously we'll talk about the current status more, but I would like to know कि how did you sort of, when did the thought of becoming a cricket coach also ever come across your mind? So when was that? तो जैसे मैंने क्रिकेट से थोड़ा सा बैकसीट लेना शुरू किया 2008 में, मेरा एक इंजरी हुआ, जिससे मेरा क्रिकेट का पैशन थोड़ा कम होने लगा। What was that 2008 आई हैड अ गिलमोर्स ग्रोइन, मतलब स्पोर्ट्समैन हर्निया बोलते हैं उसे। हाँ, तो गिलमोर ग्रोइन भी बोलते हैं। तो उसमें सर्जरी नहीं होती कुछ। अभी सूर्य कुमार यादव को रिसेंटली हुआ था, उसके पहले अश्विन को भी हुआ था, I अश्विन को remember। हुआ, हाँ। उसके पहले एग्जैक्टली इन 2008 सचिन तेंदुलकर फर्स्ट IPL सीजन, सचिन तेंदुलकर को सेम इंजरी हुई। तो मेरी इंजरी भी रिकवर सचिन तेंदुलकर ने सजेस्ट किए हुए डॉक्टर के पास जाके ही हुई। सो बिफोर दैट आई टेकन ट्रीटमेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 to 7 डॉक्टर्स, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, किसी को पता भी नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। लेकिन सचिन तेंदुलकर को जो IPL होने के बाद एक इंडियन डॉक्टर ने ही, मुंबई के ही डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर ने ट्रीट करके उसका गिलमोर्स ग्रोइन ठीक किया। तो वो जब प्रैक्टिस के लिए MIG क्लब पे आया था, वी आर पार्ट ऑफ MIG क्लब, करेक्ट। तो मैं VR इसलिए बोल रहा हूँ कि सचिन भी प्रैक्टिस वहीं करता है, इंडोर एकेडमी तो बाद में बनी, पहले वो उसके जो भी प्रिपरेशंस थे वो वहीं करता था। तो वहाँ पे, और इंग्लैंड में जब मुझे हुई ये इंजरी, तभी मैंने, सचिन तेंदुलकर भी इंग्लैंड में था, तो उससे बात की थी। तो वो बोला कि ये होता है, ऐसा दर्द हो रहा है, अभी ऐसे वक्त होता है। बोला हाँ सेम हो रहा है। तो एग्जैक्ट सेम इंजरी मुझे हुई, इसीलिए मुझे पता है, रिलेट टू दैट। तो उसने मुझे बोला था कि आप मुंबई में आके मुझे मिलना, मैं आपको डॉक्टर सजेस्ट करूँगा। बोला ठीक है, लेकिन जैसे सीज़न आगे बढ़ा तो मैं भी भूल गया, वो भी भूल गया, और ऑब्वियसली वो सामने से कहाँ से पूछेगा, मुझे ही पूछना है। तो एक दिन ऐसे ही वो प्रैक्टिस कर रहा था BKC पे, तब तक मेरे 6-7 डॉक्टर्स हो चुके थे और रिकवर नहीं हो रहा था। तो सचिन ने पहले पूछा मुझे कि क्या हुआ, इंजरी ठीक तेरा? बोला नहीं रे, अभी तक नहीं हुआ। तो ठीक है, बैटिंग करके आता हूँ फिर बताता हूँ। फिर उसने नेट्स ख़त्म, बैटिंग उसके होने के बाद बाहर आके उसने डॉक्टर को फ़ोन लगाया कि अमित दानी आ रहा है, कल सुबह भेज रहा हूँ मैं, आप उसको देख लेना, उसको एग्जैक्ट मेरी वाली इंजरी हुई है। तो फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग का डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया था 7 बजे का। तो उनके क्लिनिक में गया अंधेरी में, उन्होंने चेक किया और फिर मुझे बोला कि आपको सेम इंजरी है, तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप बॉलिंग नहीं करोगे अभी, जब तक मैं नहीं कहती तब तक बॉलिंग नहीं कर सकते। हाँ। तो मैंने ठीक है आप बोलते हो तो विद इन 1 month आई रिकवर्ड फ्रॉम दैट इंजरी। तो इट वाज दैट गुड। करेक्ट। और विदाउट सर्जरी और एनीथिंग। तो सिर्फ एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग के बेसिस पे मेरा वो जो 8 महीने से मैं सफ़र हो रहा था, वो इंजरी ठीक हो गई। वो आज तक नहीं हुआ मुझे इंजरी फिर। तो लेकिन मेरा आई वॉज 35-36 दिन, तो थोड़ा सा डाउनफॉल जो होता है रिकवरी का, वो भी तभी से हो। लेकिन वो इंजरी से रिकवर होके मैं आगे 10-12 साल क्रिकेट खेला, लेकिन कॉर्पोरेशन के लिए खेला, A डिवीजन खेला। लेकिन रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए जो चाहिए वो मुझे ही लग रहा था कि वो अभी जोर नहीं लगा सकता मैं। करेक्ट। दो आई वाज नॉट एट ऑल इन पेन और एनीथिंग, लेकिन पता नहीं, तो वहीं से उतना जो पैशन मेरा रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए था वो वहाँ से ख़त्म हो गया। अच्छा। तो क्लब क्रिकेट खेल रहा था, A डिवीजन आई प्लेड टिल 2018, सो दैट वाज टिल आई वाज 43 years old. So I enjoyed my cricketing life. Yeah. But the coach part, when did that happen? So ये जब इंजरी हुआ उसके बाद 2010-11 में MCA में कोचिंग का ये आया था लेवल 1 के लिए। तो मुझे अंपायरिंग में बिल्कुल शौक नहीं था, कभी ही नहीं था। क्योंकि उसके लिए अलग पेशेंस चाहिए। कौन धूप में खड़े रहे? पेशेंस ही चाहिए आपको। एवरी बॉल आपको देखना है, फोकस करके देखना है, क्योंकि आपके हाथ में दूसरों का करियर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो मेरे पास वो पेशेंस थे नहीं अंपायरिंग वाले, तो
तो इसलिए मैंने सोचा था कि देखते हैं मौका मिले तो कोचिंग करेंगे आगे चल के कहीं। तो ये 2010 में ये कोचिंग का आया, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि 30 कैंडिडेट्स थे मुंबई में, उसमें से सिर्फ 3 ही लोगों को लेवल 1 के लिए भेज सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी पहले प्रीवियस बैचेस जो हुए थे उसका पेंडिंग लिस्ट चल रहा था। तो मुंबई से 6 नाम भेजने थे, तो 3 ऑलरेडी थे मुंबई के पास जो ऑलरेडी कोचिंग सेमिनार्स और कर चुके थे। तो मैंने उसमें टॉप किया। मैं ओमकार सालवी और अतुल रानडे, हम तीनों टॉप 3 में आए और हम तीनों लेवल 1 के लिए गए। तो वहाँ लेवल 1 किया और उसी साल एंड ऑफ द ईयर मैं लेवल 2 भी कर लिया मैंने। तो उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया। तो ऐसे में लेवल करके आई वॉज रेडी इन 2011। करेक्ट। और वहाँ से फिर फर्स्ट असाइनमेंट, फिर मैं सिलेक्टर बन गया बॉम्बे का। अंडर 16 का 2 साल सिलेक्टर था। फिर 2013 में मुझे बॉम्बे ने ये अपॉर्चुनिटी दी फील्डिंग कोच की, क्योंकि मेरा फील्डिंग ही पैशन था। मैंने जब लेवल 1 करने गया तभी एनसीए को मैंने लिख के दिया है कि मुझे फील्डिंग कोच बनना है, क्योंकि मेरा पैशन ही वो था। और तभी वो फील्ड अनटच था। देखो बॉलिंग कोच क्या होता है कि इतने सारे ग्रेट होके गए इंडिया के लिए, तो अपॉर्चुनिटी अगर उनको या चांस मिलेगा तो, या बॉम्बे के लिए भी जो होके गए वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंडिया प्लेयर्स होके गए, तो उनको मेरे पहले ही चांस मिलेगा। सेम विद बैटिंग। तो व्हाई नॉट फील्डिंग, sort of a field area which you could expect, your expertise was there. तो मैंने वो चूज़ किया और मैं फॉर्चुनेटली एमसीए ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं टू बिकम अ फर्स्ट कोच, अपॉइंटेड कोच एज अ फील्डिंग कोच। फील्डिंग का मुझे थोड़ा जानना है अभी। आई वुड लाइक टू नो हाउ सॉर्ट ऑफ डू यू मोटिवेट द फील्डर्स एंड हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ मोटिवेट देम टू बिकम अ बेटर फील्डर। इफ सपोज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर्स, व्हाट वुड यू से, बिकॉज आई एम अ वेरी मैं भी जब खेलता था तभी पुअर फील्डर। आई यूज्ड टू ड्रॉप कैचेस like I had butter hands. So how would you sort of motivate such kind of cricketers? देखो फील्डिंग जैसे हम बोलते हैं कि बैट्समैन नेचुरल है, बॉलर नेचुरल है, वो एक्शन होती है, वैसे फील्डिंग भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल इन द सेंस वो क्या है, ऑफकोर्स स्किल इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन नेचुरल चीज़ एक ही है कि वो पैशन, टू बी देयर ऑन एवरी बॉल मेंटली एंड फिजिकली, ये पैशन होती है। ये फील्डिंग एक अच्छे फील्डर, जैसे आप इंडियन टीम में देखोगे सारे डिसेंट फील्डर, लेकिन रविंद्र जडेजा ही कम स्टैंड आउट प्लेयर वही अकेला है। ऐसे ही विराट कोहली जो पैशन से, सुरेश रैना जो पैशन से करते, वो स्टैंड आउट इसलिए होते कि दे आर सुपर फिट। फर्स्ट क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि दे आर सुपर फिट, दे आर नॉट स्कैर्ड टू गेट इंजर्ड। ये दूसरा फियरलेस उनका अप्रोच है। और तीसरा चीज़ पैशन जो होनी ही चाहिए, फिटनेस, फियरलेस अप्रोच एंड पैशन, ये 3 चीज़ों फील्ड एक अच्छे फील्डर में होने। और बाकी ऐसे है कि आपको स्किल तो सभी प्लेयर्स को डेवलप करना ही है, बेसिक तो सबका अच्छा होना ही है। अभी का क्रिकेट तो वही है। तो बेसिकली स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द फील्ड एंड गिविंग योर बेस्ट ओवर देयर सो दैट यू कैन रेप्लिकेट। आप बॉलर कब बनते हो, जब 200 बॉल डालते हो दिन में। बैट्समैन बनते हो जब 400 बॉल खेलते हो। वैसे ही फील्डर जब बनोगे, जब 100 बॉल फील्डिंग, 100 कैचेस लोगे, 100 थ्रो मारोगे, तो आप बेटर फील्डर बनोगे। मेरा इशू क्या होता था, बिकॉज आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ डाइविंग, और आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ सॉर्ट ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ एकदम एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी वेयर आई वुड बी लाइक नहीं इंजर हो जाएगा। सो आई यूज्ड टू नॉट गिव माय फुल एफर्ट ओवर देयर। तो इंजरी का भी डर था। हाँ, सो हाउ लाइक सपोज वो तो एक है कि वो तो समटाइम्स क्रिकेटर्स के दिमाग में वो घुस जाता है, वो उसको निकालना कितना मुश्किल होता है, एंड स्पेशली टू यंग क्रिकेटर्स जो who are sort of making their mark. अब अभी हम लोग को भी सिखाया जाता है। हाँ. जब हम कोचिंग कोर्सेज करते हैं, लेवल्स करते हैं, तभी सिखाया जाता है कि आपको कोई भी स्किल सिखाने के पहले बेसिक से शुरू करना है। आप अगर 14 साल के बच्चे को एकदम हाई कैचेस मैं दे सकता हूँ इसलिए मैं दूंगा, तो उसके मन में 1-2 बार तो लगेंगे भी उसको बॉल, और वो जो फियर आएगा वो उसको लाइफ लॉन्ग फियर रहेगा। सो ही विल स्टार्ट अवॉइडिंग फील्डिंग सेशंस। ये नहीं होना चाहिए। तो उनको कोई भी स्किल इंट्रोड्यूस करने के टाइम आपको सॉफ्टली जाना है,
सॉफ्ट से प्रोग्रेशन हो करके हार्ड में Difficulty level जाना। goes हाँ, hard, yeah, हाँ। correct. तो ये लेवल अगर कोच ये चीज़ नहीं संभालेगा हाँ। तो वो बच्चे के मन में डर रहेगा इंजरी का, जैसे आपके है, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग डर रहेगा। तो फिर वो जितना ज़रूरी है उतना ही करेगा। जो बेस्ट फील्डर होता है वो पहले, मैं जैसे मैंने बताया कि पहले फियरलेस होता है। They just throw their body to the उनको सिर्फ वो काम करना है, हाँ कैसे करना है वो उनको भी नहीं मालूम, लेकिन वो काम करना है। करेक्ट। वो पैशन होती है, वो फेयरलेस अप्रोच होता है, उससे ही आता है। So you were elected to the MCA Apex Council as the only first first class cricketer. So what motivated you to step into this cricket administration? तो जैसे मैंने बताया कि मैं 2010-11 से कोचिंग में हूँ और ऑलमोस्ट 8-10 साल हुए थे। और उसके पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंडियन ऑयल का एम्प्लॉय हूँ। इंडियन ऑयल ये ऐसी कॉरपोरेशन है जहाँ स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है। करेक्ट। तो हमारे पास इंडियन ऑयल के पास वसीम जाफ़र है, जो इंडिया प्लेयर्स की लिस्ट में बताता हूँ, जिसमें वसीम जाफ़र है हमारा फर्स्ट इंडिया प्लेयर। देन इकबाल सिद्दीकी फास्ट बॉलर हु हैव प्लेड 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड। देन वी हैव रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, अभिषेक शर्मा, पृथ्वी शॉ, यशस्वी जायसवाल, आवेश खान एंड खलील अहमद। These all India players we have, and all have, and best part of Indian Oil is we recruit the player when they are nobody, just a first class player or just a under 19 player. That time we pick them, and fortunately they become good players and great players. So that is so. Likewise, I also got opportunity to be a part of Indian Oil company back in 1996. So since then I am with Indian Oil now. I am a DGM in Indian Oil Administration Department. तो उसमें क्या था कि मैं कंटिन्यूसली 2010 से 2018 तक 19 तक मैं कोचिंग में था। तो आई वॉज आउट ऑफ ऑफिस फॉर मेनी डेज, दो आई वॉज रिटायर्ड इन 2010 फ्रॉम ऑफिशियल क्रिकेट। तो कंपनी ने मुझे बहुत कुछ अलाउंस भी दे चुके थे तब तक। तो मेरा प्रमोशन के लिए जो ज़रूरी होता है कि आप में ऑफिस में रहना है, जो भी करना है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि 1-2 साल का ब्रेक लेते हैं। तो तभी इलेक्शन का दौर चल रहा था। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, आपके जीतने के चांसेस है, क्योंकि मेरा मुंबई सर्किट में नाम डिसेंट है, ऐसा कोई कंट्रोवर्सी में नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मुझे वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना था कि जो ग्रुप्स का पॉलिटिक्स होता है या जो भी होता है उसमें नहीं जाना था। सो आई कंटेस्टेड इंडिपेंडेंटली एंड फॉर्चुनेटली आई वन दैट इलेक्शन एंड देन आई बिकेम एपेक्स मेंबर फॉर 3 years. कैन यू सॉर्ट ऑफ summarize how was that entire journey? तो 3 साल एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो 3 साल कोविड का 3 साल थे। 2020 तो हमें मुझे एज अ क्रिकेटर और एमसीए को एज अ होल उस 3 सालों में कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं मिला कि कोई नया टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करे या किसी के लिए कुछ करे। करेक्ट ज़्यादा नहीं मिला। तो लेकिन फिर भी टेन्योर डिसेंट रहा। उसके बाद भी मैं जो लास्ट इलेक्शन हुए उसमें भी मैं कंटेस्ट किया। उसमें भी मुझे ग्रुप में से बोला था कि आप कंटेस्ट करो। संदीप पाटिल सर एक ग्रुप के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सिंस आई वाज इंडिपेंडेंट अर्लियर, सो आई टुक अ कॉल कि मुझे इंडिपेंडेंट ही रहना है। सो आई लॉस्ट बाय फ्रैक्शन। लेकिन ओके, व्हाटएवर हैपेंस फॉर द रीज़न। तो फिर जैसे ही मैं वहाँ से फ्री हो गया तो मैंने फिर से एमसीए को बताया कि आई एम इंटरेस्टेड इन कोचिंग, नाउ आई एम रेडी फॉर कोचिंग। तो एमसीए ने मेरा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कंसीडर करते हुए मुझे फिर से कोचिंग में लाया। सो आई बिकेम कोच अगेन। सो लास्ट ईयर आई वाज अंडर 19 मुंबई अंडर 19 असिस्टेंट कोच। दिस ईयर अगेन आई आस्क्ड फॉर द ब्रेक, सो दे मेड मी सिलेक्टर ऑफ अंडर 19. So I'm a selector of under 19 team. So probably from next year I'll probably come back in coaching. So I wanted to know, how do you sort of spot the young talent? Like आपका क्या thought process होता है when you are sort of looking at a particular cricketer or cricketers? अभी जो हम बॉम्बे के लिए देखते हैं सिलेक्ट, अभी अंडर 19 के लिए मैं बात कर सकता हूँ। तो
उसमें एक तो टैलेंट, वो तो आपके नज़र में ही होता है कि अभी मैं इतना क्रिकेट खेला हूँ, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को के साथ खेला हूँ, उनको देख चुका हूँ, तो ऑब्वियसली वो एक आय होती है कि हाँ इसका स्किल अच्छा है, इसका पैशन अच्छा है, पेशेंस अच्छे है इसके पास, ये सारी जो ज़रूरी है एक बैट्समैन के लिए, वो स्किल हम ढूंढते हैं उनमें। बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनका बेसिक स्किल्स, कि वो खेल पाते हैं कि नहीं। अंडर 19 लेवल की हम बात कर रहे हैं तो वो लेवल के ही हम प्लेयर्स को सोचते हैं, प्लेयर्स के बाद। तो उसमें फिर सिलेक्शन मैचेस होते हैं काफ़ी सारे, उसमें हम चांस देते हैं। अगर मुझे कोई लड़का पसंद आया, उसका स्किल, ज़रूरी नहीं कि मेरे फेलो सिलेक्टर्स को भी वो पसंद आए, तो परफॉर्मेंस इज द ओनली क्राइटेरिया वेयर ही कैन अट्रैक्ट हिमसेल्फ टुवर्ड्स सिलेक्शन। कभी ऐसा कुछ लेकिन होता है कि एक आधा प्लेयर अच्छा होता है स्किल में, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, तो वहाँ हमें वो क्षमता चाहिए सिलेक्टर्स में कि वो हम हमारे फेलो सिलेक्टर्स को कन्विंस कर पाए या एमसीए को कन्विंस कर पाए कि ये प्लेयर हमें अच्छा लगता है कि इसमें टैलेंट है, तो हम उसको और चांसेस देंगे। तो हम उनको चांसेस देते हैं, तो इवेंचुअली उन्हीं को परफॉर्मेंस करना है, और एवरी टीम वांट्स परफॉर्मर्स। तो वो उनका लक होता है या बैड लक होता है, जो वो करते हैं आगे बढ़ते हैं या नहीं करते पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको राइट टैलेंट को स्पॉट करें और उनको अप्रोप्रिएट और अपॉर्चुनिटीज़ दे, करेक्ट, ताकि उनको भी लगे कि हाँ जस्टिस हो रहा है। करेक्ट। कभी ऐसा कुछ झगड़ा हुआ है, नॉट इन द सेंस ऑफ द नेगेटिव वे, बट इन सॉर्ट ऑफ कि यू सॉर्ट ऑफ बैक्ड, यू आर ट्राइंग टू बैक अ प्लेयर एंड यू आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस योर अदर सेलेक्टर्स एज वेल। झगड़ा नहीं होता, ऑफ कोर्स कन्विंस तो करना पड़ता है। आप अगर आउट ऑफ बॉक्स थिंक कर रहे हो, तो और सेम अप्लाइज टू देम ऑल्सो, उनको अगर किसी प्लेयर को के बारे में बोलना है, तो उनको हमें कन्विंस करना पड़ेगा। करेक्ट। कौन से पॉइंट पे कन्विंस करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता है, बहुत बार होता है कि वो नहीं एग्री करते, और बहुत बार एग्री भी करते हैं, तो रेशो 70-30 ऐसा है। तो है, लेकिन करेक्ट उनको, अगर आप सामने वाले को जानते हो कि किस टाइप का ये बंदा है, अगर आप मुझे जानते हो कि मैं कितना ऑनेस्ट हूँ अपने जॉब को लेके, कितना प्रोफेशनल हूँ, तो आप मुझे भी वो चांस दोगे। चल ठीक है, अमित बोल रहा है तो देखते हैं, एक चांस देके देखते। तो वैसे हम एक और कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, नहीं तो फिर हम सिलेक्टर्स का जॉब नहीं है, वो ऑफिस में बैठे लोग भी कर सकते हैं। करेक्ट। अगर सिर्फ परफॉर्मेंस देख के ही निकालना है, तो वो उनको स्कोर शीट्स आती ही है हर मैच की, तो वही देख के वो टीम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन द एंड ऑफ हम सारे खेले हुए ही है डिसेंट लेवल क्रिकेट। जुल्फिकार परकार इंडिया प्लेयर है, रवि कुलकर्णी है रणजी ट्रॉफी प्लेयर, उमेश गोटखिंडीकर है, फिर प्रशांत सावंत और मैं, हम 5 है। तो हम some qualifications are there, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं बचपन से, तो वी ट्रस्ट ईच अदर। आपने मुंबई क्रिकेट को अभी इतना क्लोजली आप फॉलो कर रहे हो, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट मुंबई क्रिकेट इज फेसिंग करंटली? चैलेंज इन द सेंस, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंस नहीं है, बच्चों में नहीं है, और उससे ज़्यादा पेरेंट्स में नहीं है। कि बच्चों को वो, अगर वो चाहता है मेरा बेटा या बेटी क्रिकेट खेलना, तो कब तक उनको बैक करे, कौन से लेवल तक बैक करे। 1 साल 2 साल में वो दे गिव अप कर जाते हैं कि अरे मेरा बेटा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, या परफॉर्मेंस नहीं कर, सिलेक्ट भी होते हैं टैलेंट पे, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं करते, तो दे स्टार्ट कंपेयरिंग देयर किड्स विद अदर्स, कि अरे वो कर रहा है, उसको तो नहीं मिल रहा है। वो उसका रीज़न हो सकता है सोशल मीडिया, हो सकता है और कोई, या फिर वो, लेकिन कंपैरेटिवली मेरे ख्याल से ना पैसा अभी के पेरेंट्स के पास ज़्यादा है देन आवर टाइम। हाँ, तो लेकिन पेशेंस हमारे पेरेंट्स में ज़्यादा थे, आई वुड से, देन अभी के पेरेंट्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स ने पेशेंस रखना है, और कंपेयर अपने बच्चे को किसी के साथ नहीं करो, कि नोबडी कैन बी सचिन तेंदुलकर एवर। वो एक ही हुआ है, वो उसके बारे में सोचना भी हमारे लिए गलती होगी। तो मेरा एडवाइस पेरेंट्स से यही होता है, जब हम सेमिनार्स में या कहीं बात करने जाते हैं, तो हम पहले
पेरेंट्स को टारगेट करते हैं। बच्चों को तो ठीक है, उनका तो सीखने का टाइम है, दे विल मेक मिस्टेक्स एंड दे विल सॉर्ट तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक स्कूल में गए, एक क्लास में सबके सब फर्स्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स, तो ऐसा ही आपका बच्चा वो टाइम, कोई धीरे धीरे आगे चढ़ता है, कोई एकदम आगे चढ़ता है, कोई जल्दी आगे चढ़ के गिर जाता है। करेक्ट। वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में आती है, लेकिन पेरेंट्स के पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो सोशल मीडिया का आपने मेंशन किया। सोशल मीडिया मेरे ख्याल से जो डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि आप अमेरिका में बैठे बंदे के बारे में जानते हो, लेकिन आपके नेबर के बारे में नहीं जानते। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है सोशल मीडिया का, और वो एडिक्शन है कि आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, नेवर एंडिंग है, एटर्नल, वो क्या बोलते हैं उसे, लूप है वो, कि जो चलते रहेगा और आपको जो देखना है वही दिखाएगा। तो वो उसमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी काफ़ी है, और डिस्ट्रैक्शन। आपका जो टाइम खेलने का होना चाहिए या रिकवरी का होना चाहिए, आराम करने का, उस वक्त आप अगर सोशल मीडिया पे आ गए तो आपके 3-4 घंटे कहाँ निकल गए पता नहीं, रील स्क्रॉल करते और फिर उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे होगा, रिकवरी पे होगा, और फिर आपके उसी का इफेक्ट है आपके नेक्स्ट डे के परफॉर्मेंस पे होगा। I also heard that you have coached teams in MPL as well as Legends League as well. Yes. So, what was which team were you for MPL? MPL initially the first 2 seasons Sobo Supersonics. Okay. And then last year, this season I was the head coach of Maratha Royals, and we won the championship. Yeah, correct. And with Sobo, we were the runners up in the last season. 2019, right? Yeah. Like, how was the journey like? Like, how was the experience? ये T20 फॉर्मेट जो है ना, उसके लिए मतलब आई वॉज बैडली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये होना चाहिए मुंबई में, क्योंकि IPL शुरू हो के 2008 में IPL शुरू हुआ है, उसके 10 साल के बाद MPL हुआ है, और उसके पहले हमने गोवा प्रीमियर लीग खेल चुका हूँ मैं। ओके। तो लेकिन स्मॉल स्केल पे है, तो सबकी निगाहें MPL पे थी। जो मैं जानता हूँ कि मुंबई कब अपना प्रीमियर लीग लेके आएगा। जैसे ही लाया, उसमें से हमें बढ़िया टैलेंट मिला था, दुबे, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ऑफ कोर्स था, लेकिन उसने जो कुछ इनिंग्स खेले हैं उससे उसका ऑफ कोर्स वो हेल्प करता है सिलेक्टर्स को टू जस्ट ध्यान देने के लिए, ये प्लेयर के ऊपर ध्यान रखो, ये आगे चल के काम आएगा। तो वैसे ही शिवम दुबे आया है, पृथ्वी शॉ ने भी वहाँ पे किया है, यशस्वी जायसवाल ने भी वहाँ पे किया है, शशांक सिंह ने किया है। तो ये सारे प्लेयर्स जो मैं जानता हूँ कि MPL के प्रोडक्ट्स है, जिनको MPL से मदद मिल के आगे चल के वो इंडिया खेले या जो भी अच्छा लेवल खेले, IPL में अच्छा परफॉर्मेंस। तो इस हिसाब से MPL का महत्व बहुत ज़्यादा है। और मैं पहले 2 सीज़न सोबो सुपरसोनिक्स के साथ था, तो मेरे पास भी टैलेंटेड प्लेयर्स थे, जैसे ध्रुमिल मटकर, हरमीत सिंह जो अभी USA के लिए खेल रहे हैं, और कौन था, रोहन राजे था मेरे पास, पराग खानापुरकर, और हम लोग एक सीज़न में फाइनल में हारे हैं। और उसके बाद 6 साल का अनफॉर्चुनेटली गैप हुआ फॉर वॉट एवर रीज़न, कोविड था और जो भी रीजन्स थे। अभी इस साल रिवाइव हुआ है वो, और फिर इसमें हमने मराठा रॉयल टीम ली, और टूर्नामेंट शुरू होने तक हमारी टीम, सब लोग बोलते थे, मुझे नहीं लगा कभी, राइट फ्रॉम द ऑक्शन डे मुझे कभी नहीं लगा कि हम वीक है, लेकिन सब लोग बोलते कि तुम्हारी टीम वीकेस्ट है। लेकिन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई टीम, एंड वैसे ही रिजल्ट आया कि हम चैम्पियन हो गए। तो मेरा प्लेयर ऑर्डिनरी नहीं होता या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, वो कौन से माहौल में खेलता है, एनवायरनमेंट, वो बहुत मैटर करता है, स्पेशली फॉर दिस T20 फॉर्मेट। अगर आप अच्छे प्लेयर को डीमोरलाइज करोगे या अच्छे प्लेयर को आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करवाओगे या याद नहीं दिलवाओगे, तो वो डिलीवर नहीं करेगा। आप ये रिफ्लेक्ट करता है टीम का एटमॉस्फेयर, टीम के परफॉर्मेंस पे। तो मेरा एज अ कोच यही फ़र्ज़ है कि यहाँ के हमको उनको बैट कैसे पकड़ना है या शॉट कैसे मारने नहीं सिखाना है, वो उसी के बेसिस पे वो सिलेक्ट हुए, लेकिन यहाँ पे कैसे हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है, राइट प्लेयर्स को चांस देना है टू परफॉर्म बेटर एंड बेटर, और वहीं से हम इस साल चैम्पियन हुए। ऑफ कोर्स अभिषेक नायर जो हमारे मेंटोर थे, उसका हाथ बहुत बड़ा है इसमें। करेक्ट। क्योंकि वो राइट मेंटोर, ये जो वर्ड है वो इसके लिए एकदम परफेक्ट फिट होता है, क्योंकि
उसको मैंने क्लोजली देखा। एज अ प्लेयर हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हुए थे, एक दूसरे के साथ खेले हुए थे, लेकिन एज अ मेंटर मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया उसको। तो वो हर एक को अपना स्पेस देता है, उसका स्पेशलिटी यही है। और आप में से एक अच्छी चीज़ वो बाहर निकालते हैं। आपके पास कुछ भी हो सकता है अच्छी चीज़, वो आप में से वो यू कैन बी अ गुड मोटिवेटर, यू कैन बी अ गुड इवन इफ यू आर नॉट प्लेइंग इन प्लेइंग 11 स्टिल यू कैन कंट्रीब्यूट। ये उसने टीम को बताया किया बेसिकली। हाँ, एवरी नाउ एंड देन। करेक्ट। क्योंकि हम बहुत सबको चांस देना ये हमारा मोटिव नहीं था। जितने कम लोग खेलेंगे, सेम टीम जितना खेलेगा उतना टीम बेटर खेलेगा। ये फॉर्मेट का स्पेशलिटी है T20 का। करेक्ट। तो और बहुत शॉर्ट पीरियड का टूर्नामेंट था, तो उसमें तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते कि कोई नया प्लेयर आके एक्सप्रेस करे। तो हमारा यही था कि सेम प्लेयर कंटिन्यू करे और आगे बढ़े। तो हम अच्छा परफॉर्म करके जीते। एंड व्हाट अबाउट लेजेंड्स लीग? लेजेंड्स लीग तो दे आर ट्रूली लेजेंड्स, दे आर रिटायर्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स। करेक्ट। और उन सबका बॉस एक ही है, द गॉड ऑफ क्रिकेट, तेंदुलकर। तो when he is in the dressing room, nothing can go wrong. तो like how does he like what sort of conversations does he have with his teammates as well? Yeah. So एक ही है कि उसका when he is in the dressing room, he is different person altogether. वो बाहर जितना आपका दोस्त है, जितना आपका आपके साथ कंफर्टेबल है, उतना ही आप उसको उसका पैशन देख के आप मोटिवेट होते हो। यू कांट इग्नोर हिज पैशन, यू कांट क्रिकेट डिजीज जिसको बोलते हैं जो डिसिप्लिन जो बोलते हैं, क्रिकेटिंग डिसिप्लिन, वो कूट कूट के भरा हुआ है उसमें। तो वो सब चीज़ देख के सब अलर्ट हो जाते हैं। अभी एक जस्ट एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। फर्स्ट सीज़न में, लेजेंड्स लीग के फर्स्ट सीज़न में, जो कोविड के पहले हुआ था शुरू, उसमें वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, जहीर खान, ये सब थे, संजय बांगर था और साईराज भी था। लेकिन वो साईराज जैसे टूर्नामेंट शुरू हुआ बैकआउट हुआ था। समीर दिगे था। इसमें सबसे नॉन सीरियस प्लेयर था वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह। अच्छा। और ये सचिन ने डे 1 पे पॉइंट आउट किया, भाप लिया कि ये है। तो उसने अभी दे आर ऑल्सो इंटरनेशनल प्लेयर्स, और इवन सचिन नोज कि ये इंटरनेशनल, इनको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है। तो उसने मुझे एक रोल दिया कि तू पॉइंट आउट कर कि कौन कौन सीरियस नहीं है। तू सिर्फ बताना मुझे कौन कौन सीरियस नहीं, आई विल डील विद देम एट देयर ओन लेवल। तो उसका ये क्या बोलते हैं, उसका बड़प्पन जो बोलते हैं वो ये है कि वो ह्यूमिलेट किसी के सामने नहीं करता। समझा। आई डाउट कि किसी के पीछे भी करता होगा। ही इज़ सो नाइस। तो वो सटल बाम्बू जिसे बोलते हैं, जो मैसेज देना है वो सटली ग्रुप में पास ऑन कर देता है। जिसको लगना है वो लगेगा, जिसको नहीं लेना है वो वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो लेकिन टीम को बनाने में सचिन तेंदुलकर का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो वही चीज़ करता है कि सबको ऐसे पकड़ के रखता है और उसके एवरीवन लुक अप टू हिम लाइक अ ट्रू गॉड। करेक्ट। तो कोई हल्के में ले ही नहीं सकता। तो यही एक फैक्टर है जो इंडियन टीम को बांध के रखती है, और ये लेजेंड्स लीग में स्पेशली। It just shows how competitive he is. Like even if it is just a Legends League, for him, no, it's not just a Legends League. It is something which I want to win. उसने मुझे याद है एक ही चीज़ फर्स्ट इंटरेक्शन में कही थी, फर्स्ट नेट सेशन में, कि आई नो वी ऑल आर रिटायर्ड प्लेयर्स, आप में फिजिकल उतनी एबिलिटी नहीं है अभी कि आप वैसे ही करो, लेकिन पब्लिक इरफान पठान को देखने आ रही है, सचिन तेंदुलकर को देखने आ रही है, वीरेंद्र सहवाग को देखने आ रही है। तो आप अपने नाम के लिए खेलो, मेरे लिए मत खेलो, करेक्ट, कंट्री के लिए मत खेलो, आप अपने नाम के लिए खेलो। अगर नहीं खेल सकते तो आप मुझे आज बता दो, यू कैन एक्सक्यूज योर सेल्फ, लेकिन आप अपने आप को वहाँ पे जाके दिखाओ, जो भी आपके पास बचा है वो दिखाओ। तो सब ऐसे मोटिवेट हो गए। और उस दिन से मुनाफ पटेल था, सब लोग अभी एज्ड है, सबके किसी का घुटने दर्द हो रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, स्लो डाउन हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन
उसका मानना ये है कि अगेंस्ट टीम भी वैसे ही है ना, हाँ या कोई भी, लेकिन अभी इस साल का स्टैंडर्ड कुछ अलग ही लेवल पे था, हाँ क्योंकि 32 ईयर्स ओल्ड रिटायर्ड क्रिकेटर्स खेले वे प्लेइंग, हाँ इंडिया के लिए, वो पवन नेगी हाँ 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 और वो पंजाब का बैट्समैन, उसका नाम भूल गया मैं, तो पवन नेगी था, 32 ईयर्स ओल्ड, लेफ्ट हैंड, IPL के रहे, मनन मनदीप नहीं ना, मनन वोरा नहीं, मन नाम है उसका, मन कुछ नाम, मन तो कुछ है, ओके ओके वो, तो ही इज ऑल्सो 32-33 ईयर्स ओल्ड और करंट IPL प्लेयर है वो। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेके डायरेक्ट ये ज्वाइन किया है और हैप्पीली ज्वाइन किया है। हाँ अभी वो भी बोलते कि सचिन पाजी की पैशन देख के हमें रोना आ रहा है कि हम मोटिवेट अपने आप को नहीं कर पाते एट दिस एज, और एट 52 ही इज हाईली मोटिवेटेड। And I saw some of his innings. He was playing as if he was a 25-year-old. Unbelievable he was. And preparation भी उसका होता है ना. And he has so much physical limitations, मतलब injuries की वजह से. हाँ. Wear and tear इतना हो चुका है over the years. तो बेचारे को किस चीज़ में से जाने पड़ता, हम तो डे इन डे आउट देखते हैं उनको. करेक्ट. होटल में 20-25 दिन हम लोग साथ में रहते, तो वो अपने आप को अगर खड़ा करके ऐसे खेल सकता है, तो ये इनको तो खेलना ही है, तो वैसे ही होता है, ये मोटिवेट सब हो जाता है उसको देख के. How can grassroots cricket in Mumbai be made stronger to continue producing world-class cricketers? अभी एक जो मुंबई के पास, मुंबई इज ब्लेस्ड विद हैविंग सो मेनी ग्रेट्स. करेक्ट. राइट फ्रॉम गावस्कर सर, उसके पहले पॉली उमरीगर सर, और जो भी बड़े बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं मुंबई के पास, उनमें और अभी तक के प्लेयर्स जो पृथ्वी शॉ, आई वुड से लास्ट जो इंडिया खेला हुआ है, श्रेयस अय्यर है, पृथ्वी शॉ है, इनमें एक चीज़ कॉमन है, दे आर लॉयल टू देयर स्कूल, दे आर लॉयल टू देयर कॉलेज, दे आर लॉयल टू देयर क्लब. तो ये लॉयल्टी जब तक रहेगी, दे शुड, आजकल के बच्चों को लॉयल्टी अपने क्लब के साथ, खून में थोड़ा वो ज़्यादा आने की ज़रूरत है. क्या हो रहा है कि एक साल में चेंज हो रहा है. आज अगर मुझे नहीं खिलाया तो मैं नेक्स्ट ईयर दूसरे क्लब के लिए खेलूँगा, फिर तीसरे साल, और दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर ओन परफॉर्मेंसेस, दे आर फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल पार्ट्स. तो वो लैकिंग है और वो वर्स्ट होते जा रहा है. तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि यही चीज़ हमारे आने वाले बच्चों, तो इसके लिए MCA ने कुछ कदम उठाने पड़ेंगे. दैट वुड बी वेरी हार्श, लेकिन बट दे हैव टू सॉर्ट ऑफ मेक अ कॉल बिकॉज इट्स अ ट्रेंड व्हिच नीड्स टू बी स्टॉप्ड. Entire world is looking at Mumbai Cricket Association for having the next superstar, the next Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, the next Rohit Sharma, Ajinkya Rahane. Every player is unique. Prithvi Shaw, correct. पृथ्वी शॉ को तो हमने 8 साल से देखा है. He came at MIG, so हमने देखा है कि क्या टैलेंट है वो. तो he will definitely come out of whatever problems he is having right now. He is a strong guy and I wish him कि गुड लक टू कम आउट ऑफ दिस वेरी सून. और परफॉर्मेंस करेगा तो ही आएगा. सारी चीज़ें अनदेखी हो जाएगी अगर वो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली करेगा जो वो कर रहा था. सो जब तक बल्ला चल रहा है सब कुछ चलेगा. तो यही है कि लॉयल्टी आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखो प्रैक्टिस के लिए अभी एवेन्यूज अवेलेबल हो गए. पहले ऐसे नहीं था. मॉनसून ऑफ सीजन बोले तो हम लोग शिवाजी पार्क में कीचड़ में खेलते थे. उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं था. या फिटनेस करते थे, बीच पे भागने जा रहे हैं या और कहीं जिम में जा रहे हैं कुछ कर. अभी उनके लिए इंडोर हो गया, तो टेक्निकली और प्रैक्टिकली इनके लिए ऑफ सीजन ही नहीं है. तो 24/7 दे कैन प्ले क्रिकेट. हर जगह इंडोर एकेडमीज खुल गई है. तो प्रैक्टिस जिसको करे, आदमी थक जाएगा, मर जाएगा, लेकिन फैसिलिटीज़ कम नहीं हो रही. तो इतना सब कुछ हो के आपको अभी एक ही चीज़ रहती है कि आपको मैक्सिमम टाइम आपको ग्राउंड पे बिताना है. दूसरा, बी लॉयल, बी पेशेंट, कि आपको आपका अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपका चांस मिलेगा, तभी आप परफॉर्म करो. I think my next question was going to be that only, but I think you have summarized that in your answer right now. What advice would you like to give to the young cricketers who are who want to make a mark in this sport that we all love? So एक ही चीज़ बोलूँगा कि अभी पैसा काफ़ी आ चुका है क्रिकेट में at every level, और I would appreciate Mumbai Cricket. I would love to appreciate Mumbai Cricket Association for that, क्योंकि उन्होंने अभी रणजी ट्रॉफी में आपने सुना होगा कि
जो उसमें भी स्लैब्स उन्होंने किया और एडिशनल पैसा उन्होंने देना शुरू किए लास्ट ईयर से कि अगर आप 20 रणजी ट्रॉफी खेल चुके हो तो आपको 20% और 30% मोर मनी यू विल गेट। ओके, तो ऐसा हुआ है। तो जो मतलब उसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम हाँ। तो अपार्ट फ्रॉम BCCI फीस मैच फीस MCA इज गोइंग टू ऐड अनदर। हाँ, तो पैसा ही पैसा है। तो ये प्रोफेशनल लेवल के भी आगे गए। मतलब अगर मैं बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले, जो अभी खेल रहा है अर्जुन दानी मेरा बेटा है, तो वो अभी अंडर 23 सर्किट में 19 खेला है 6। तो उसके लिए अगर वो पूरा सीजन खेलता है 1 साल रणजी ट्रॉफी का मुंबई के लिए, तो ही कैन अर्न 35-40 lakhs। और क्या चाहिए? आप कहीं जॉब करोगे तो भी उतना ही कमाओगे, शायद उससे कम कमाओगे। लेकिन क्रिकेट में करियर जो बोलते हैं ये है। और वो MCA ने किया हुआ है। MCA की जो एपेक्स कमिटी अभी की, उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो हैट्स ऑफ टू देम कि ये उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। जिस किसी का वो दिमाग होगा। लेकिन अमोल काले जो पहले प्रेसिडेंट है उनका, अभी अजिंक्य नाइक है उनका, सबका इसमें योगदान है। लेकिन ये बहुत बड़ा कदम है। प्लेयर्स को आके सिर्फ कंसिस्टेंटली खेलना है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है। करेक्ट। इससे ज़्यादा क्या चाहिए मोटिवेशन? आई थिंक दिस इज व्हाट सेट्स मुंबई क्रिकेट अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर्स एसोसिएशन। मतलब इम्पॉसिबल है कि कोई एसोसिएशन आसपास भी उसके आ सके, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द प्लेयर्स। और जितना क्लीन सिलेक्शन, मैंने मतलब ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है एंड ऑलवेज ये रहा है कि जितना क्लीन सिलेक्शन मुंबई में होता है उतना क्लीन कहीं नहीं होता। क्लीन सिलेक्शन प्रोसेस। करेक्ट। एक आध प्लेयर 2 प्लेयर हम समझ सकते हैं, और वो तभी भी होता था, अभी भी होगा, आगे भी होगा, उसके लिए नहीं। लेकिन मेजॉरिटी प्लेयर्स, नहीं तो रोहित शर्मा नहीं आता, तो श्रेयस अय्यर नहीं आता, तो सूर्य कुमार यादव नहीं आता, ट्रू, पृथ्वी शॉ, इतने सारे प्लेयर्स हुए, ऐसे ही नहीं होता। पहले लोगों ने कुछ अच्छे सिस्टम बना के रखी है, उसी की वजह से ही आता है। तो मुंबई, दैट इज़ व्हाई आई सेड कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन इज़ ब्लेस्ड। और जो भी है अच्छा काम किया है, इसलिए अच्छा नाम हो रहा है। आई विश आई कुड जस्ट एक्सटेंड दिस टॉक एंड पूरा रात कर सकता हूँ, बट आई एम प्रिटी श्योर he also has his job, camera I also have to go. Yeah, and most importantly you also have your own job. But nahi sir, thank you so much once again यहाँ पे आने के लिए. I had a मतलब great time interacting with you. Thank you very much and, for having me. We wish you all the best for your future endeavors. So thank you so much. Thank you very much. This story is brought to you by Avisa Cricket Balls. These balls are trusted and used by cricket teams in India and abroad.